Yes, now I am going to start today interrogative sentence from the present indefinite tense. In my channel, in my English channel, my motto English, learn English without stress. So I shall try here. Today I am going to start interrogative sentence. Interrogative sentences are two types of sentences. First interrogative sentence and second interrogative sentence, they are adding question word from the sentence, from the any type of sentence, any type of, we can say in Hindi, bak. So I am going to start here. Please, interrogative sentence. This is it. I shall call first interrogative sentence. Interrogative sentence. First interrogative sentence. I shall always say this is a first interrogative sentence. Why? Because here we shall not use, mostly not use question word. This is a totally simple sentence. Use here helping verb. First, structure. I am going to write here structure. This is a present indefinite because I am taking all the sentences from the present indefinite. This type of sentence, last word of ta hai, ti hai, te hai. So I am taking here interrogative sentence. In Hindi, प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य. Structure. Do, oblique does, subject plus verb first plus object plus other word and last in question mark. Question mark is compulsory in the interrogative sentences. We are taking example. This is a first interrogative sentence. We are taking example. Example. Examples. क्या मैं दबात खोलता हूं? क्या मैं दबात खोलता हूं? दिस इज क्या. This kya is not denoted by the what. This is denoted by the do or does according to sentence, according to tense. And tense here present indefinite tense. So here we shall use do or does. Everybody know all the, I had told you always do or does. Do is used in plural subjects or does is used in singular subjects. So मैं with में do का प्रयोग करेंगे मैं के साथ में. Do I open, फर्स्ट फॉर्म खोलने की, ओपन. डू आई ओपन, किसको खोलते हैं? दबात को. दबात क्या खोलते हैं? दबात को इंक पॉट. और भी ले लेते हैं. हरि मोहन, यहां पर यूज करेंगे क्या. क्या हरि मोहन, क्या हरि मोहन घर जाता है? क्या हरि मोहन घर जाता है? हरि मोहन, दिस इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी का नाम है.
प्रॉपर नाउन है तो डच का प्रयोग करते हैं, सबको मालूम है डच। हरि मोहन की स्पेलिंग HA, हरि मोहन MOHAN मोहन कहाँ जाता है, गो टू होम। और भी एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर। क्या मैदान पर, क्या बच्चे मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे देख लेना आप इस पर, जो मैं लिख रहा हूं आप उसको समझना। सबसे पहले अंग्रेजी किसकी बना रहे हैं हम, देखो बच्चे हैं, प्लूरल है बच्चे, तो डू आएगा। बच्चे चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, खेलते, प्ले द क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, GROUND। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस इज अ फर्स्ट, दिस नेम इज गिवन बाय मी, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस in the grammar. Now we are going to, after that we are going to start second interrogative sentence. बिठा दूं, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड, फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वी आर नाउडेज वी आर टेकिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। I had told in last videos पहचान, identification and पहचान of present indefinite tense. So I am going to, this is a interrogative sentence from the present indefinite tense. This is second. इसकी second क्यों है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, यहां क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से आ सकते हैं, वाट आ सकता है, वाट सबको मालूम है, वाट क्या। वैन आ सकता है कब के अर्थ में, वेयर आ सकता है प्लेस यानी कि स्थान के अर्थ में, कहां कहां के अर्थ में, वेयर। वाट आ सकता है, वैन आ सकता है, वेयर आ सकता है। हम हाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं कहीं कहीं, हाउ का कैसे के अर्थ में। विच का प्रयोग कर सकते हैं, विच कौन सा और कौन सी के अर्थ में, कौन सा कौन सी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड QW। उसके बाद आएगा डू, उसके बाद आएगा डू और डज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों आपको यदि टेंस सीखना है तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वर्ब की सभी फॉर्म को बाय हार्ट कर लें, मौखिक रूप से याद कर लें। बहुत आवश्यक है कि आपको तीनों फॉर्म वर्ब की आनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से टेंस को जान सकते हैं और उनको बना सकते हैं। बिना थर्ड फॉर्म, बिना सेकंड फॉर्म, बिना फर्स्ट फॉर्म के आप इनको बनाने में परेशानी आपको होगी। यदि आप टेंस को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको पूरी बहुत सारी वर्ब्स
याद कर लेनी चाहिए और उनकी टेबल बना लेनी चाहिए और उनको बार बार दोहराते रहना चाहिए, जिससे आपकी जैसे ही वर्ब इंप्रूव करेगी और आप पूरी फॉर्म जान जाएंगे तो आप अपने जो सेंटेंसेस आएंगे उनको अच्छी तरीके आसानी से बना सकते। क्वेश्चन वर्ड आ गया, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब फर्स्ट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद OW आ गया और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है ही, सबको मालूम है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आध। देखो, तुम क्या मुझे जानते हो? देखिए यहां क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड। तुम क्या मुझे जानते हो? बच्चों समझना, तुम क्या मुझे जानते हो, ये क्या जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और इसी बात का ये आपको संकेत है, या आपको दिखा रहा है कि इसको सेकंड इंट्रोगेटिव कहा मैं कह रहा हूं और कई ग्रामर में भी कहा गया है। तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनानी है? क्वेश्चन वर्ड की। सबको मालूम है कि क्या का अर्थ व्हाट होता है, व्हाट, और व्हाट के बाद अब हम आएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, तुम के साथ कौन आना चाहिए? डू आएगा, व्हाट डू यू, और यू आएगा उसके बाद ऑफ सब्जेक्ट। और जानना, जानने की अंग्रेजी नो होती, व्हाट डू यू नो मी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है, आई का मी होता है, आई माई मी, आई माई मी। ये क्वेश्चन मार्क लग गया, पहला आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा आप ले लें, दूसरा ले लें, एक एग्जाम्पल और। तुम कहां रहते हो? तुम, या तुम हटा दे, तुम ले चुके हैं, तो वे कहां रहते हैं? वे कहां रहते हैं, इसको ले लेते हैं। तो वे, यहां वेयर आएगा, वेयर, वेयर दे, वेयर के बाद डू आएगा, वेयर डू दे लिव, रहना, क्वेश्चन। एक और ले लेते, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? थोड़ा बड़ा सा है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी, विच का यूज हो रहा है यहां पर, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो इन विच क्लास, यहां ऑब्जेक्ट पहले ले सकते, नहीं ले सकते ना लो, तो इन विच क्लास डू यू स्टडी, ऐसे पढ़ लिखा जा सकता है, या ऐसे लिख सकते हैं इन विच, या विच डू यू रीड इन क्लास, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इन विच डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, क्लास है यहां पर, इन विच क्लास, थोड़ा दोबारा से बनाएंगे अगेन। सबसे पहले विच के बाद डू यू रीड इन क्लास, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, विच डू यू रीड इन क्लास, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। थैंक यू।